ریل کا سفر جس نے کیا ہے اس نے لیٹ ہوتی ہوئی ٹرینیں اور خوار ہونا ضرور ایکسپیرینس کیا ہے۔ سکھر کے نوجوان ہیں مدثر زیدی، انہوں نے پاک ریل لائیو ایپلیکیشن بنا کر ٹرین میں سفر کرنے والے مسافروں کو طویل انتظار کی اذیت سے چھٹکارا دلا دیا ہے۔ اس ایپ سے پہلے مسافروں کو کئی گھنٹوں تک ریلوے اسٹیشنز پر بیٹھ کر ٹرین کا انتظار کرنا پڑتا تھا، لیکن اب پورے ملک میں تقریباً 48 لاکھ افراد نے اپنے موبائل فونز میں یہ ایپ انسٹال کر دی ہے اور اس سے وہ ٹرینوں کے شیڈیول، لوکیشن اور اسٹیشنز کے اوقات کار دیکھ سکتے ہیں اور ان کا سفر آسان ہو گیا ہے۔ مدثر زیدی صاحب جو ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اس ایپ کے بارے میں۔ السلام علیکم مدثر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کون سی زندگی کی آپ کی ٹرین چھوٹی تھی جس کے بعد آپ نے یہ ایپ ڈیولپ کرنے کا آپ کے اندر احساس جاگا؟ ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ ٹرین چھوٹی نہیں، لیکن ٹرین کا انتظار کرتے کرتے جو ہے وہ بہت ٹائم ویسٹ ہوا، اور ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ ایسا ہوا۔ اور پھر ہر انسان کی اپنی ایک طبیعت ہے، تو میں شروع سے جب ہوش سنبھالا تو پاکستان کو ہم نے یعنی بہت اچھا بھی دیکھا، اور پھر اس کو پاکستان کو بگڑتے ہوئے بھی دیکھا، اور پھر یہ اپ اینڈ ڈاؤنس تو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دیکھتے ہی رہے۔ تو ریلوے کا نظام میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ ایک پراپر اپنے سمت میں چلا ہو، کبھی ٹھیک، کبھی اپ، کبھی ڈاؤن۔ تو سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ ریلوے کی جو ٹائمنگ ہے ریلوے کی، کیونکہ ٹرینیں چلیں لیٹ ہوتی ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک ٹرین ہماری 2-3 گھنٹے ڈیلے آ رہی ہے تو ہم جا کے اپنا ٹائم اسٹیشن پہ ویسٹ نہ کریں۔ اور اتنا یعنی گرمیاں ہوں، سردیاں ہوں، بیچارے غریب لوگ کس طرح اسٹیشن پہ جو ہے نا ویٹ کرتے ہیں۔ تو وہ میرے ساتھ ایک فیملی کے ساتھ ایک ہوا انسیڈنٹ میں 4-5 گھنٹے جو ہے وہ جب میں نے یہ دیکھا کہ ٹرین آئی نہیں رہی اور وہ 5-5 منٹ کر کے انہوں نے بہت زیادہ ڈیلے کر دیا، تو اس وقت میرے مائنڈ میں یہ آیا کہ یار یہ لگتا ہے کہ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا اس کام کے لیے۔ تو بہرحال پھر میرا ایک 2017 کی بات ہے، پھر دین گورنمنٹ پی ٹی آئی کی آئی، تو میں کسی دوست کے ریفرنس سے جا کے میں مل لیا منسٹر شیخ رشید صاحب سے۔ انہیں میں نے کہا کہ میں ایک کیونکہ میرے سافٹ ویئر IT کمپنی ہے اور میں سکھر سے میرا تعلق ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس ریلوے کے لیے کام کروں۔ تو میرا شروع میں مائنڈ بڑا تھا کہ میں ایک لمیٹڈ اسکوپ پہ کروں گا، لیکن جب میری ملاقات ہوئی، انہوں نے میرا سوچ دیکھی اور مجھے موقع دیا، تو اس کے بعد دین پھر تقریباً 6 ماہ لگے، اور وہ چھوٹے سے ہوتے ہوتے وہ پتہ لگا کہ پورا پاکستان ریلوے ہمیں آن لائن کرنا پڑ گیا۔ کیا بات ہے! تو اس ایپ کے فیچرز کیا ہیں، کیا کیا کر سکتی ہے یہ؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اگر ٹرین کو فار ایگزامپل میں ٹرین کے جو مشہور نام ہے جیسے تیزگام ہے، اگر میں نے روڑی سے تیزگام کے لیے سفر کرنا ہے، کراچی کے لیے یا لاہور کے لیے، تو میں اس کا اسٹارٹنگ ٹائم سے میں ٹریک کر سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل اگر وہ کراچی سے چل رہی ہے شام کو 5 بجے، تو مجھے ایسٹیمیٹڈ ارائیول وہ دے دے گا کہ بھائی اگر کراچی سے ڈیلے بھی چلی ہے تو مجھے اسی حساب سے وہ آٹومیٹکلی ڈیلے بتائے گا کہ یہ 5 بجے چلی گئی یا 6 بجے چلی ہے، 1 گھنٹہ ڈیلے ہے، اور رائٹ نو اتنی اسپیڈ سے چل رہی ہے۔ اور ایسٹیمیٹڈ آپ کا جو روڑی اسٹیشن ہے، یہ آپ لاہور تک اس کا اینڈ جرنی تک آپ کلک کر کے اسٹیشن پہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کب تک اس ٹرین پہنچے گی۔ تو اب اس کے علاوہ جو ہے فار ایگزامپل اگر میں ٹرین رات کو لیٹ آ رہی ہے تو اور میں کسی حیدرآباد اسٹیشن سے مجھے یعنی اس پہ چڑھنا ہے، تو میں پہلے اس میں ارائیول نوٹیفیکیشن لگا سکتا ہوں، پری ارائیول، اٹس مین کے الارم۔ تو اب میں وہ 15 منٹ سے لے کے 60 منٹس تک کا ہم نے آپشن دیا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں 15 منٹ سے 30، 45 اور 60 منٹس پہلے آپ کو ٹرین آنے سے پہلے باقاعدہ ٹرین پہ کوئی ایک انجن کی ایک بیل آتی ہے ٹریڈیشنل، اور وہ آپ کو بتا دے گی کہ آپ کا اسٹیشن جو ہے وہ اتنی دیر میں ٹرین آپ کے آنے والی ہے۔ تو اس طرح کی اپلیکیشن جو ہے وہ میں نے پورا ورلڈ ٹریول کیا ہے، تو جو فیچر میں نے دیے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس طرح کے فیچر اس اپلیکیشن میں کہیں پہ بھی اچھا یہ بتائیں زیدی صاحب کہ یہ ایپ جو ہے اس میں یہ ساری انفارمیشن آتی کہاں سے ہے؟ فیڈ کون کر رہا ہوتا ہے، اپڈیٹ کون کر رہا ہوتا ہے؟ اچھا، میں اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جہاں مجھے مشکلات آئیں وہاں پہ ایک پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ یہ ریلوے کے جو اچھے آفیسرز ہیں انہوں نے رائٹ ناؤ اسٹل ہمارے سپورٹ بھی کی ہے، کیونکہ جو میرے ٹیم ہیں جو ٹرینوں کی ایلوکیشن کرتی ہے، دیکھیں ایک ٹرین ہے، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر ایک ٹرین تیزگام یہاں سے لے کے پنڈی تک چلتی ہے
तो उसका जो लोकोमोटिव है या इंजन है वो 2 दफ़ा चेंज होता है, सॉरी 1 दफ़ा, और खैबर मेल का 2 दफ़ा चेंज होता है, कि लाहौर में चेंज होता है और फिर अगर खैबर मेल जाती है पिंडी, फिर वहाँ से पेशावर के लिए फिर चेंज होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें रेलवे का कंट्रोल रूम प्रोवाइड करता है, और मेरी टीम जो है वहाँ पे सक्खर के अंदर हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है। रेलवे के कंट्रोल रूम में उन्होंने हमें स्पेस दिया हुआ है, और वहाँ पे हमारे तकरीबन 7 जो है वो यानी बॉयज़ हैं टेक्निकल, जो उनकी इन्फॉर्मेशन को लेके सिर्फ हम एलोकेशन करते हैं कि भाई इस ट्रेन में ये लोकोमोटिव लगा है, डन। उसके बाद सारा सिस्टम ऑटो के ऊपर चलता है, इस पर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है, एल्गोरिदम्स, IT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए उसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ जब ट्रेन पहुँच जाती है, अगर उसका इंजन चेंज करना है या बीच में इंजन फेल होता है तो वो हम नोटिफिकेशन में दे देते हैं, और उसके बाद हम उसे चेंज करते हैं। तो वो लड़के मेरे बैठ के वहाँ पे काम करते हैं, और बाकी मेरी टीम पूरी जो है वो कराची में जो है वो ऑनलाइन, क्योंकि इसकी 24/7 जो है इसकी मॉनिटरिंग है, जो मेरी डेवलपमेंट टीम इसके ऊपर करती है, ताकि हैक, आज तक ये एप्लीकेशन हैक नहीं हुई, और बहुत इस पे हैकिंग अटैक भी तो हुआ। अब ये जो आपने बताया कि स्पीड भी इस पे मालूम हो जाती है ऐप पर, तो ये तो डेटा लाइव ट्रैकिंग की मदद से आता है, ये किस तरह आ रहा होता है इस ऐप में? ये हमने अराउंड कोई 250 जो लोकोमोटिव्स हैं उसके अंदर ट्रैकर इंस्टॉल किए हुए, तो उसकी मदद से जो है वो हमें बिल्कुल GPS के थ्रू हमें उसकी लाइव जो है वो स्ट्रीमिंग आ रही होती है, और वहाँ से एप्लीकेशन में फिर हम उसे बिल्ड करके और फिर वहाँ से उसको उठा रहे होते हैं। वो रियल टाइम लोकेशन होती है। और एक और चीज़ बताऊँ आपको मैं कि जब भी रेलवे का कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी एक्यूरेसी के, जब इंजन ट्रेन हिट होती है या कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसकी एक्यूरेट रिपोर्ट जो है वो हम ही रेलवे को इशू करते हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही, समझ में आ गया। इस सारे सिस्टम पर वैसे खर्चा कितना आया आपका? ये जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरा ये था कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा और मेरी अपनी टीम है। चलें अगर मार्केट में अगर हम ये किसी के लिए डेवलप करते तो अराउंड ये कम से कम भी कोई 20 to 30 मिलियन की इसकी कॉस्ट थी अगर हम मार्केट में बना के देते। लेकिन मैंने इन हाउस डेवलप किया तो हमने बहुत, मेरा आइडिया था कि हम इसे कोई 20-25 लाख में डेवलप कर लेंगे, लेकिन ये स्कोप बढ़ता चला गया। और फिर ट्रैकर मेरा शुरू में था कि हम 10 ट्रैकर में एक मॉडल दिखा देंगे, बाद में रेलवे खुद कर लेगा। तो लेकिन वो एक बड़ा लेंदी प्रोसीजर है। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जब आप टेंडर में जाते हैं तो आपको 1000 रुपये की चीज़ आपको 1 लाख रुपए की खरीदनी पड़ती है। उसमें गवर्नमेंट का भी लॉस, और उसमें फिर वही वेंडर्स आते हैं जो इस प्रैक्टिस से गुजरे हुए होते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई इतने सारा मैंने काम कर लिया तो आखिर में मैं फिर कोई ऐसा लॉस रेलवे को दे दूं। तो इस वजह से मैंने फिर ट्रैकर से लेकर सारा कुछ खुद किया, और अराउंड कोई उस वक्त 10 मिलियन रुपीज़ जो है मेरे इस पर टोटल स्पेंडिंग हुई। और फिर 1.5 साल तक मैंने इस पर 5 to 7 लाख हर महीने स्पेंड भी किए इसको रन करने के लिए। और उस 1.5 साल के बाद फिर हमने इस पर गूगल ऐड ऑन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये एप्लीकेशन ब्रेक इवन पर आ गई है। मुझे कोई जेब से लगाने नहीं पड़ते, और ये एक सक्सेसफुल मॉडल बना के रेलवे के ऊपर 1 रुपया भी आज तक रेलवे से मैंने इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं किया। वाह, अच्छा, अब आप क्या इसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रहे हैं? मतलब ये बहुत बड़ी ऐप है, दुनिया भर में यूज़ हो सकती है मेरे ख्याल में ये तो। जी बिल्कुल। देखें, ख़ास तौर पे जो आपका यानी एशिया साइड पे, फॉर एग्जांपल श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे ट्रेन का नेटवर्क काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे इस तरह की सहूलत नहीं है। तो अच्छा। बिल्कुल प्लान है कि इंशाल्लाह हम उसको वहाँ पे मार्केट करें, और उसमें पाकिस्तान का ही नाम होगा। और मैं तो चाहूँगा कि रेलवे अथॉरिटी अगर इसमें हेल्प करे तो वो अपनी तरफ से भी लॉन्च कर सकती है इसको। तो हम जो फैसिलिटेशन होगी वो हम इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ज़रूर देंगे। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में कोई मुश्किलात पेश आई? मतलब लोगों से डील करना, हुक्काम से डील करना? सबसे बड़ी जो मुश्किलात आई ना हमें, वो जब हम ट्रैकर इंस्टॉल करने पे आए तो अब क्योंकि लोकोमोटिव में ट्रैकर इंस्टॉल करना एक सबसे पेचीदा मरहला था। उसमें हमें रेलवे की बड़ी परमिशंस रिक्वायर्ड थी। फिर इसके अलावा जो उनके इंजीनियर्स थे नॉन कोऑपरेटिव थे उस अच्छा। वक्त, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि शायद मेरा कोई ज़ाती मुफाद है। क्योंकि आपको पता है इस मुल्क में बहुत कम लोग होते हैं जो, अगर कोई इतना हमारा एक माइंडसेट बन चुका है कि अगर हम किसी को आज जाके कहें कि मैं आपके लिए काम बगैर पैसों में करने आया हूँ तो वो हैरानगी से देखता है। मुझे तो पहले 3 महीने तक ये टटोला गया, ये पता नहीं शायद मैं कोई एक रेलवे का जो लोकोमोटिव है शायद वो लेके गायब ना हो जाऊँ। तो बड़ा इस तरह का मुझे फेस हुआ। लेकिन मैंने उनसे बैठ के उनको समझाया। अच्छा। जब मैंने उन्हें कन्विंस किया तो फिर वही जो इंजीनियर्स जो हमें डिस्टर्ब करते थे उन्होंने मेरी नीयत को देख के, और स्टिल राइट नाउ बे इंतहा कोऑपरेटिव है। और मेरा ये ईमान है कि आपकी नीयत सही हो, आपका अपने मुल्क के साथ मोहब्बत हो, और फिर जो भी ऑफिसर हो वो नेचुरली अल्लाह ताला उसके दिल में डालता है और वो आपकी भरपूर मदद करता है। इस वजह से मुझे बड़ा था कि मैंने कहा गवर्नमेंट चेंज होगी तो ऐसा ना हो कि, क्योंकि मैंने इसे पॉलिटिकल वे में नहीं किया था, बस मुझे मौका उस गवर्नमेंट ने ज़रूर दिया। तो लेकिन इस गवर्नमेंट
चेंज होने, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद भी हमें अल्लाह का शुक्र है कि कोई इम्पैक्ट नहीं आया कि हमें किसी ने डिस्टर्ब किया हो। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर। अच्छा, अब आपके पास सारी ट्रेनों की सारी तफसीलात, सारा डेटा होता है, ये बताएं दिल पे हाथ रख के, आज तक पाकिस्तान में कोई ट्रेन वक्त पर आई है? ये देखें, ये जब बारिशें नहीं हुई थी और उससे पहले जो यानी पीरियड था, अगर आप समझ लें कि मैं अगर इससे भी पिछले वाली की बात करूं, यानी पीटीआई गवर्नमेंट से पहले भी, तो ट्रेनें एक्यूरेट हुआ करती थी बिल्कुल, बल्कि टाइम से पहले पहुंचती थी। उसके बाद फिर जो है वो क्योंकि ट्रैक इतना ख़राब है, क्योंकि मैं रेलवे में, मैं आपको बताना भूल गया कि मेरा ग्रैंड फादर और मेरे फादर का ताल्लुक रेलवे से था, तो मुझे रेलवे की इन्फॉर्मेशन बहुत थी, जिसकी वजह से मैंने इसको डेवलप किया। तो मुझे सब पता है कि रेलवे का जब तक ट्रैक सही नहीं होगा उस वक्त तक रेलवे की टाइम की एक्यूरेसी कभी हो नहीं सकती। इस वजह से शायद अब जो गवर्नमेंट आई है उन्होंने ट्रेन का टाइम, फॉर एग्जांपल अगर कराची से रोड़ी 6 घंटे का था तो उसको उन्होंने 8 आवर्स कर दिया है। तो अब वही 2 घंटे जो लेट होती थी अब वो लेट नहीं होती, लेकिन टाइम पे पहुंचती है, लेकिन टाइम की जर्नी उन्होंने जो बढ़ा दी। पर जब तक रेलवे का ट्रैक सही नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान में कभी रेलवे की जो ट्रेन हैं यानी वो कभी भी टाइम पे नहीं आ सकती। क्या बात है, ज़बरदस्त। नहीं, ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि टाइम पर ट्रेनें आया करती थी। एक ज़माने में पाकिस्तान में भी रेल का जो महकमा था, या मेल, रेल और जेल, ये 3 कहे जाते थे, बड़े प्रेस्टिजियस है नौकरियों के हवाले से। और बाद में तो फिर इनके साथ जो हुआ वो तो सब जानते हैं, दैट इज़ हिस्ट्री। तो हमारे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे वो जेल में हुआ करते थे, तो रेल, मेल और जेल, अच्छा, जेल के महकमे में, जेल के महकमे में सुपरिटेंडेंट जेल थे। तो अच्छा, और दोनों तरफ से, वालिदा की तरफ से भी और वालिद की तरफ से भी। लेकिन यह है कि बाद में फिर इन महकमों का हाल जो हुआ वो हमारे सामने हुआ और ध्यान नहीं दिया गया। गोरा तो बड़ा ठीक ठाक छोड़ के गया था, बाद में जो हमने इसके साथ किया वो तो फिर हम जानते हैं। अब जैसे लोग काम कर रहे हैं, आप देखें, बड़ी ज़बरदस्त ऐप बनाई है, बेस्ट ऑफ लक जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह।